خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ میں۔ میں ہوں محمد اقبال۔ آج ہمارے ساتھ ایک نہایت معزز اور باوقار شخصیت موجود ہیں، معروف مذہبی و سماجی رہنما جو ان دنوں کولکاتہ کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جناب عبید اللہ خان اعظمی صاحب کا کولکاتہ آنا اکثر مختلف سماجی، تعلیمی اور فکری پروگراموں کے سلسلے میں ہوتا رہتا ہے، اور اس بار بھی وہ ایک اہم امپیکٹ پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل آپ کی سوچ میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ ملک کے موجودہ حالات، سماجی تبدیلیوں، نوجوان نسل کی فکری سمت اور آپ کے اس امپیکٹ مشن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تفصیلی انٹرویو اس سلسلے میں لے چکے ہیں اس سے پہلے، اور آپ کے چینل کے ذریعے عوام الناس تک وہ ساری باتیں بہت حد تک پہنچ گئی۔ امپیکٹ کا جو مقصد ہے، امپیکٹ کا فل فارم ہے انڈین مسلم پبلک افیئرس کمیٹی۔ ہم نے یہ امپیکٹ ایک حدیث پاک کی روشنی میں بنایا ہے۔ سرور عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں تم دو کام کر لو، تم سچے مسلمان ہو۔ تمہیں صرف دو ہی ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں، دو ہی حق ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ادا کر لو، تمہیں تیسرا کام نہ دے رہے ہیں، نہ تمہیں تیسرے کام کی ضرورت۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خالق اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور مخلوق تم ہو جو پیدا کیا رب العالمین نے۔ تو خالق کا حق ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہب اور ارکان شریعت کی پیروی۔ یہ خالق کا حق ادا کرو اور مخلوق کا حق ادا کرو۔ خالق کا حق ادا کرنے کو مذہب کہتے ہیں، مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے اسلام کا تصور سیاست کہتے ہیں۔ تو امپیکٹ اسی کی روشنی میں بنا ہے اور اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی ہمارے ممبر بنے وہ شریعت اسلامیہ کے محافظ بنیں اور اپنے عمل سے شریعت کا اظہار کریں۔ پنج وقتہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی رسومات مذہب ہیں ان کی پیروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اظہار مسلمان کے اپنے عمل سے ہونا چاہیے۔ دوسرا کام خدمت خلق۔ خدمت خلق کے سلسلے میں ایسا فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ آپ اگر خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے کام کی ضرورت نہیں۔ اب خدمت خلق کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی پھیلائیے، یہ خدمت خلق ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے اور ان کے لیے روزگار اور ہنر کا انتظام کیجیے، یہ خدمت خلق ہے۔ لوگوں کو برائی اور بے حیائی سے بچا کر لوگوں کو بھلائی کی راہ پر ڈالیے اور اپنے وجود سے خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیجیے، یہ خدمت خلق ہے۔ تو جتنا بھی کسی کو انجینئر ہم بنا رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق ہے، کسی غریب بچے کو MBBS بنا رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق ہے، یونیورسٹی کے ذریعے ماہرین تعلیم پیدا کر رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق ہے، بے روزگاروں کو روزگار دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق ہے، قانون کے اعتبار سے مظلوموں کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق ہے، جیلوں میں بے قصور پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا خدمت خلق کا ایک اتنا بڑا فلسفہ ہے جس کو الفاظ میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ تو یہ دو کام ہیں اور دو فرض ہیں ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ تو عبادتوں کے ذریعے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں اور خدمت خلق کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ اس کا نام ہے امپیکٹ، انڈین مسلم پبلک افیئرس کمیٹی۔ اور اب اس سلسلے میں ہم کلکتہ حاضر ہوئے کہ یہاں کے کچھ انٹلیکچوئل کلاس کے لوگوں کو اکجا کریں اور ان حضرات کے سامنے خدمت خلق اور مذہب کے تحفظ کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ نتیجے میں اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے خواجہ احمد حسن صاحب کی وساطت سے، نیز ہمارے دوسرے ساتھیوں کی وساطت سے یہاں
कलकत्ता का बहुत ही माना जाना इंटेलेक्चुअल क्लास आया हमारी गुजारिश पर, और सबसे हमने मशवरे मांगे कि इस सिलसिले में और क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के डिस्कशन में आई। दूसरी बात, हमने ये सोचा कि जो कुछ हम कहने आए हैं इससे पहले हम कुछ करके चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में वज़न पैदा होगा। चुनांचा हमने 12वीं क्लास ड्रॉप आउट लोगों के लिए ITI का इंतज़ाम किया, BA ये B फार्मा, D फार्मा, C फार्मा, इसका इंतज़ाम अमली तौर पर हमने ज़मीन पे किया। उसी के साथ फार्मेसी का पूरा कोर्स का इंतज़ाम किया और लॉ की एजुकेशन का वकील बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने नागपुर में, हमारा अपना कॉलेज 28 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसमें 10.5 400 बच्चियाँ हॉस्टल में हैं, 400 बच्चे हॉस्टल में हैं, और ये तमाम ही कोर्सेज चल रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम 29 मई को नागपुर कॉलेज पे जा रहे हैं, और 30 मई को हमारे जितने बच्चे टॉपर हुए हैं उन बच्चों को शील्ड, इनामात और मज़ीद उनके हौसले में पुख्तगी पैदा करने के लिए अपनी बातें हम वहाँ रखेंगे। हमने ये काम इसलिए किया कि 12वीं क्लास के जो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हैं, इनके पास न इल्म है और न हुनर है। तो अब ये करते क्या हैं? ये बच्चे पुलिस की दलाली में लग गए, ये बच्चे नशा अफ्यून में लग गए, ये बच्चे किसी न किसी हराम तरीके से पैसा कमाने के लिए अपने दीन की अजमत को भी खो बैठे, अपनी तहजीबी वरासत को भी खो बैठे। इसलिए इन बच्चों को अगर हराम से हलाल की तरफ नहीं लाया गया और इन्हें कोई हुनर नहीं दिया गया तो अगली नस्लें इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान रहता है। तो 20 करोड़ मुसलमान की बात अगर आप मान लें कि 20 करोड़ मुसलमान है, तो 20 करोड़ मुसलमानों में 12% नौजवान नस्ल है आपकी, 12% कह रहे हैं, 60%, यानी 12 करोड़ नौजवान मुस्लिम बच्चे बच्चियां आपके माशरे में मौजूद हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यही नौजवान तब तक किसी भी कौम का मुस्तकबिल बनता है, किसी भी कौम का फ्यूचर बनता है। प्रेजेंट में अगर ये अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा होगा, और आने वाले दौर में जब हिस्टोरियन अपना कदम उठाएगा तो हिंदुस्तान के इस नौजवान नस्ल की अच्छाई भी लिख सकता है और बुराई भी लिख सकता है। तो इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहीं पुलिस की दलाल बन गई है, कहीं शराब के ज़रिए पैसा हासिल कर रही है, कहीं फसाद में मुलविस है। नतीजा ये है कि पूरा मुस्लिम माशरा इससे मुतासिर हो रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि 12वीं क्लास ड्रॉप आउट बच्चा अब क्या बन सकता है। अब वो कम से कम इतनी शुद्ध बुद्ध उसके अंदर पैदा हो गई है कि हम उसे डिप्लोमा करवा सकते हैं, कोई हुनर दिलवा सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं, टीवी मैकेनिक बना सकते हैं, कार का मैकेनिक बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इम्पैक्ट ने ये सारे काम नागपुर में ज़मीन पे उतार दिए हैं। और नागपुर में हमारे साथी हैं डॉक्टर अनीस साहब, जो 4 मरतबा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। अल्लाह के करम से उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है इस इम्पैक्ट के सिलसिले में। वो हमारी सेंट्रल बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे बेहतरीन साथी अजीज़ और छोटे भाई हैं। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ये काम हमने किया और इसके बाद हमने ये सोचा कि ये बच्चे जो ड्रॉप आउट हुए हैं इन्हें तो हुनर दे दिया जाए ताकि हराम से हलाल की तरफ आ जाएं, और इनके ज़रिए जो अगली नस्लें आ रही हैं वो नस्लें बाइज़्ज़त रोज़गार की और बाइज़्ज़त तालीम की हामिल हो जाएं। दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे सामने उन बच्चों का है जो बच्चे 12वीं क्लास में टॉप कर गए हैं। अब इन टॉपर बच्चों में आप जैसे समझदार लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा 12वीं क्लास में टॉप कर गया है उसके अंदर हम एक इंजीनियर छुपा हुआ पाते हैं, उसके अंदर एक प्रोफेसर छुपा हुआ है,
उसके अंदर एक IAS IPS छुपा हुआ है, उसके अंदर एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है, उसके अंदर एक बेहतरीन पॉलिटिशियन छुपा हुआ है। अगर उस बच्चे को पूरा रास्ता मिल जाए आगे तालीम हासिल करने का, तो हमें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील मिलेगा जो हमारी मिल्लत की ज़रूरत है। मगर अब वहाँ पर परेशानी ये है कि वो बच्चा तो टॉप कर गया, मगर उसके घर वाले इतने कमज़ोर हैं माली एतबार से कि आगे वो उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ऐसी सूरत में इम्पैक्ट ने उस पर भरपूर निगाह रखी है कि ऐसे बच्चों को हम पिकअप करेंगे और ऐसे बच्चों की तालीम को हम मुनक़ता नहीं होने देंगे, और इंशाअल्लाह हमारा ये बच्चा कल का डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, IAS होगा, IPS होगा, वकील होगा। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में मौजूद हैं और उस सिलसिले में हम इस काम को कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम कॉलेज पे जा रहे हैं। 30 तारीख को बाकायदा हमारे वो बच्चे जो टॉपर हुए हैं, घर वालों की पोजीशन हम देखेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ तक वो कॉपरेट कर सकते हैं, उन्हें आगे पढ़ाने में जितना वो कॉपरेट कर सकते हैं उनका कॉपरेट होगा, और बकिया जो अखराजात होंगे वो इंशाअल्लाह आपकी तंजीम इम्पैक्ट पूरा करके उन बच्चों को आला तालीम का हामिल बनाएगी। तो ये चूँकि हम ये काम ज़मीन पे उतार चुके हैं, उसके बाद हमने सोचा कि कलकत्ता में अपने इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स के साथ एक मीट कर लें और उनको इम्पैक्ट का बैकग्राउंड बता दें। और इम्पैक्ट ये चाहता है कि हम पूरे मुल्क में जिस तरह सेंट्रल बॉडी है हमारी, उसी तरह से सूबाई बॉडी हो हमारी, उसी तरह से ज़िलाई बॉडी हो हमारी, और उसी तरह से उन इलाकों में भी ये काम हो। ज़रूरी नहीं कि वो नागपुर आकर के पढ़ें, अगर यहीं ITI कॉलेज है तो यहाँ उनकी मदद की जाए। यहाँ फार्मेसी है तो फार्मेसी का, इसलिए कि देखिए ये सब काम वो हैं जिन कामों को AI भी मुतासिर नहीं कर पाएगी। ये काम बच्चे के पास हुनर होना चाहिए। हमारा एक नारा है कि ज़रूरतमंद मत बनो, ज़रूरत बन जाओ। जब आप ज़रूरत बन जाओगे तो दूसरा आपका मोहताज होगा, और आप जब ज़रूरतमंद बनोगे तो आप दूसरे के मोहताज होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही AC बंद था, हम लोगों को गर्मी हो रही थी, तो अभी तो ये चला दिया गया, मगर कलेक्टर साहब के कमरे का AC अगर ख़राब हो जाए, कमिश्नर साहब के कमरे का AC अगर ख़राब हो जाए, तो बड़े पावरफुल हैं वो, ज़िलों के मालिक हैं वो, कमिश्नरी के मालिक हैं, मगर जब AC बेकार हो गया उनका और गर्मी में पसीना बहने लगा, तो अब वो ज़रूरतमंद बन गए। उनके बस की बात नहीं है कि वो AC को सही कर दें। जब ज़रूरतमंद बन गए तो उनकी ज़रूरत कौन है वो तलाश किया जाने लगा, और यही AC का जो मैकेनिक है यही उनकी ज़रूरत है, और वो उसके ज़रूरतमंद है। आया, 2 तार इधर उधर किया, ठीक ठाक करके चला गया। समझदार अगर है तो पैसे दे रहे हैं तो पैसे न ले, नहीं साहब ये खिदमत है, हमने आपकी खिदमत किया है, हम कोई पैसा नहीं देते। पैसा लेने की बात है तो 1500 रुपये मिल जाएंगे, मगर पैसा नहीं देता तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। एक कलेक्टर की मदद उसने किया है, एक कमिश्नर की मदद उसने किया है। कलेक्टर और कमिश्नर कभी उस बच्चे को भूल नहीं सकता, और उसका इतना बड़ा काम हो सकता है जितने बड़े काम का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी, यहीं कलकत्ता के भाइयों को हमने समझाया है, उनके सामने रखा है। मज़ीद हमारे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं आप उसको उजागर कर दें, और जो काम हम कर रहे हैं बेहतर है तो इसमें बेहतर मशवरे आपके आ जाएं और बेहतर शमूलियत आपकी हो जाए, और यहाँ भी इम्पैक्ट उसी तरह से सूबाई तौर पर रन करे। उस सिलसिले में हमारी यहाँ आमद हुई थी, और हालात जैसे हैं मुल्क के आप देख ही रहे हैं। तो इन हालात में मुसलमानों से अपील करते हैं कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने ईमान की चट्टान पे मजबूती के साथ खड़े रहिए। ऐसे हालात उम्मत में हमेशा आए हैं, और ऐसे फिरऔन भी हर दौर में पैदा हुए हैं, मगर कोई न कोई मूसा हर दौर में आया है जो फिरौनों के असदहे को अपनी लाठी के ज़रिए उनकी गर्दनें मरोड़ गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे खेल तमाशे हो रहे हैं, होंगे, इसका भी एक पीरियड है। अल्लाह की हिकमत पर ईमान हमें रखना चाहिए, और सब्र के साथ इन तमाम तर चीज़ों को इंगेज करते हुए अपने हिंदुस्तान में जो संवैधानिक आपके अख्तियारात हैं और आपके जो राइट्स हैं
ऐसा नहीं है कि मैं सब्र की तालीम दे के आपको बुज़दिली का रास्ता दिखा रहा हूँ, नहीं। सब्र का मतलब हुआ इस्तिक़ामत और पूरी ताकत के साथ अपने विजन पर रहते हुए हालात का मुकाबला करना, इस्लामी शनाख्त पैदा करते हुए अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करना और मुल्क के संविधान ने जो राइट्स दिए हैं, गवर्नमेंट किसी की भी आए उसके सामने आँख से आँख मिलाकर संविधान की रोशनी में बात करते हुए उसको इस बात के लिए कायल करना और शर्मिंदा करना कि तुम्हें ये काम करना होगा। आज जो हालात हैं उन हालात से आप सभी लोग वाकिफ हैं, ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इन हालात में सब्र ज़रूरी है, हिकमत ज़रूरी है, समझदारी ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों को आप अपना हथियार बना लीजिए और यही वो चीज़ें हैं जो आपको मुतमईन कर सकती हैं कि मालिक तेरा जो हुक्म है वही होना है। हम तो तेरी बिछाई हुई बिसात पे खेलने वाले खिलाड़ी बन करके रह गए हैं। तो अल्लाह की मदद हमें ज़रूर मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो तलब हिदायत अपने अंदर रखते हैं और हालात कैसे भी हों उन हालात में आपको परवरदिगार एक उम्मीद का की किरण देता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें जद्दोजहद करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी कौम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सफ़ीना, इसका जहाज़ तूफ़ान में, लोग कहते हैं तूफ़ान में है, मैं नहीं मानता। उम्मत का जहाज़ तूफ़ान में नहीं है, तूफ़ान उम्मत के जहाज़ में बैठ गया। तूफ़ान में होता तो निकालना आसान था, मगर ये तो इसके अंदर तो तूफ़ान बैठा हुआ है, तो इंटरनल तौर पर भी हमें उसको निकालना होगा। और इंटरनल तौर पर निकालने का मामला ये है कि हमें अपने हालात को तब्दील करना होगा, हमें बुराइयों से भलाई की तरफ आना होगा, हमें जहालत से एजुकेशन की तरफ मुड़ना होगा। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से चल करके अगली नस्लों की हिफाजत आप कर सकते हैं। इम्पैक्ट का मतलब तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और बक़ा है, और यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हमारी हाज़िरी हुई थी और आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक हमने इस बात को पहुंचा दिया। ये वक्त है कुर्बानी देने का। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, काश सबकी अक्ल में आता है ये आसानी के साथ। नेमत कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। आप फल हासिल करने की कोशिश नहीं कीजिए, आप खाद बनकर उस दरख्त की खाद बन जाइए जिस पर फल अगली नस्ल के लिए तैयार हो। हम मुसलमान हैं तो हमारे कैरेक्टर से इस्लाम ज़ाहिर भी होना चाहिए, तब तो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह ताला फरमाता है हम किसी कौम की हालत को उस वक्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वो कौम खुद भी अपनी हालत को तब्दील करने के लिए तैयार न हो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हालात को तब्दील कीजिए, मस्जिदों से रिश्ता जोड़िए। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। तो नमाज में आपको मालूम होना चाहिए कि आप अल्लाह से क्या बात करते हैं, और कुरान पढ़ते वक्त कुरान के तर्जुमे के ज़रिए आपको पता चलना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या बात करता है, क्या हिदायत देता है, क्या हुक्म देता है। मुसलमानों का रिश्ता मस्जिदों से भी बहुत कमज़ोर हो गया है, मुसलमानों का रिश्ता कुरान करीम से भी बहुत कमज़ोर हो गया है। ज़रूरत है कि इन दोनों के दामन को मजबूती के साथ पकड़ा जाए। और आखिरी बात, उम्मत बहुत बुरी तरह बर्बाद हुई है फ़िरक़ाबंदी की वजह से, चाहे वो सियासी फ़िरक़ाबंदी हो और चाहे वो मजहबी फ़िरक़ाबंदी हो। इसने इस उम्मत के वजूद को खोखला करके रख दिया है। अब भी लोगों की समझ में आनी चाहिए, फ़िरक़ा बनने के बजाय लोगों को उम्मत बनना चाहिए। कुरान करीम का यही फ़ैसला है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और फ़िरक़ा बंदी का शिकार मत बनो। इत्तेफाक की बात यह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को तो मजबूती से थामा नहीं और फ़िरक़ा बन करके पूरी कौम का सत्यानाश कर डाला है। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम की बात करो, तालीम की बात करो, मुस्लिम उम्मा की तरक्की की बात करो, एजुकेशन की बात करो। ये सारा काम घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। शुक्रिया।